Hello friends, today we are going to study the third chapter of Flamingo, class 12th, that is Deep Water. William Douglas is the writer of this chapter, and in this chapter we will see that how we can overcome to our fear. Actually, in our life, we find out everyone fears to something or someone. But what are the challenges to face these fearful things or fearful person, and how we can overcome, how we can defeat these things, these emotions, these fears. And in this chapter, this is an autobiographical chapter, and William Douglas is describing about himself that he was very fearful. He was afraid of water, and he has hydrophobia. And how it become, there is a reason behind it. When he was a small child, near about 3 or 4 years old, he went with his father near the beach of California, and a wave of water came and he swept under the water. Then that incident uh, always kept him, make him fear, and because of that he was fearful to the water. And after that, incident also happened, one accident also happened in YMCA pool. And what happened, we will study in this chapter, and how he was able to overcome, how he became success to overcome his fear, over his fear. That fear was from the water. So let us go through this chapter, and let us start this chapter. And uh, I will teach this chapter in 2 parts because it is a long chapter. So we will study, otherwise video will be so long and it will be difficult to study. So we will divide it in 2 parts. So let us start. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The writer is saying that it had happened when he was 11 or 10 years old. Then he decided that he will learn to swim. And there was a pool, YMCA pool in Yakima, and it was a good opportunity for him to go to the YMCA pool and learn swimming. It is the time when he was only 10 or 11 years old. The Yakima River was treacherous. Treacherous means dangerous. Yakima River was dangerous. The Yakima River was very dangerous because many people has drowned in that, and it was dangerous for the children, and a particular 10-year 5-year old children. So the mother of the writer, William C. Douglas' mother, continually warned against it. लगातार उन्हें चेतावनी भी दिया करती थी because this river is too dangerous, and kept fresh in mind the details of each drowning in the river. और लगातार उस नदी में डूबने वाले लोगों का डिटेल उनके माइंड में बढ़ती रहती थी. It means always she warns to the writer that these the last week, in this week, and before 2 days, and today and yesterday, the 2 people drowned in the river, and a boy drowned in the river, and always make him remember about the dangerous of the river, Yakima River. But
the YMCA pool was safe. YMCA pool is a swimming pool, so it is safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. या 2 या 3 फीट ही गहरा था shallow end जहाँ से शुरू होता था. And while it was 9 feet deep at the other, और दूसरी छोर तक गहराई इसकी 9 फीट थी. अर्थात यह ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और यह एकाएक नहीं इसकी गहराई थी. इसका जो गहराई था वो धीरे धीरे, जैसे 2 फीट गहरा है, फिर 2.5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3.5 होगा, देन 4 होगा, like this. It was not that suddenly 2 feet, after that 5 feet or 9 feet. No. It was gradual. It deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. Water wings are like a tube that we use when we swim. एक ट्यूब की तरह से, एक विंग जो हम अपने हाथों में लगा लेते हैं ट्यूब की तरह से, जो हमें डूबने नहीं देता. उसने अपने हाथों में लगाया और पूल के पास चला गया तैरने के लिए. I hated to walk here. This is the figure map of the river. Here you can see the Yakima river. It is shown here, and this is the Yakima river. And now, so let us go through this chapter. So what he is saying that he already described about YMCA pool. He decided to go there and to swim, and Yakima, he is not going in the river of Yakima river, because that is very treacherous and dangerous, and he is describing about the YMCA pool that is not directly deep, and its deep is gradual, and on the other 9 feet deep on the other side, and this side only 2 or 3 feet. So naked into it and saw my skinny leg. He was very hated. He hated this thing, that is, he was very thin, and he does not want to expose his thinny and naked into so my skinny leg. वो दुबला पतला था, नहीं चाहता था कि उसके पतले पैर कोई देखे, इसलिए उसे बहुत घृणा थी अपने पैरों से. और बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. किसी तरह से मैंने सबड्यू किया, ख़त्म किया अपने इस घमंड को, गर्व को, और मैंने किया. मैं नदी में गया, पूल में गया, YMCA pool. For the beginning, however, I had an aversion to the water. स्टार्टिंग में, शुरुआत में मुझे डर था, एवर्जन था. किससे? वाटर से. Why this thing is told the matter that when I was in it, जब मैं गया, this started when I was 3 or 4 years old, जब मैं 2 या 3 साल का था. एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझे कहाँ लेकर गए थे? कैलिफोर्निया. एक्चुअली समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हेन हिज फियर स्टार्टेड, देन द स्टूडेंट्स बिकम confused. They do not give the exactly answer. This year, it means in 2019-20 board exam, this question was asked, but the students were diverted from the root of the question. They wrote, but that was not exactly answer. The exact answer was this, that when he was 3 or 4 years old and फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब 3-4 साल का था और उसके पिताजी उसे कहाँ ले गए थे? कैलिफोर्निया. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और वह तट पर खड़े थे, वह और उसके पिता. आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पे लटका हुआ था, उन्हीं के सहारे खड़ा हुआ था. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन इस तरह से पानी का झोंका आया कि उसने मुझे नीचे गिरा दिया. एंड स्वेप्ट ओवर मी, और पानी मेरे ऊपर बहने लगा. यानी पानी, समुद्र का पानी, बीच जो पानी था कैलिफोर्निया रिवर का, वह मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से स्वेप्ट होने लगा, बहने लगा. एंड आई वाज बरीड इन वाटर, और ऐसा लगा कि जैसे मैं पानी के नीचे दफन हो गया हूँ, बरीड हो गया हूँ.
माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ट, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन इस मेरे अंदर एक डर बैठ गया था, मेरे हृदय में एक डर बैठ गया था और ऐसा लग रहा था कि जो वेव का फोर्स है उससे मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। सो दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट in the reference that writer is telling about his fearful thing, that when he was 3 or 4 years old, and what happened with him, and he was standing together with his father in the surf, and what happened, and the wave of water knocked him, and when it knocked him, then he was buried under the water, and a terror came in his heart, in his mind, and that terror continues further in his life, in his future also. So next paragraph, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. और ये घटना 3-4 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन आज जब वह 10 साल की उम्र में YMCA पूल में जा रहा है स्विमिंग सीखने के लिए, तब उसके बचपन की वह घटना, वह दुर्घटना उसे फिर से याद आ रही है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, उसकी वह दुखदाई यादें फिर से आ गई एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और उसके जो बचपन का जो डर था उसको फिर से झकझोर कर उसके सामने लाकर रख दिया। But in a little while I gathered confidence, but it did not took too much time, and meanwhile he got his confidence and I paddled with my new water wings, अपने न्यू वाटर विंग के साथ मैं पैडल पाँव चलाने लगा। Watching the other boys and trying to learn by aping them means copying them, और जैसे अन्य बच्चे को तैरने का प्रयास कर रहे थे उन्हीं को कॉपी करते हुए, उन्हीं की तरह नकल करते हुए मैं भी हाथ पैर चलाने लगा, सीखने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैं 2 या 3 बार अलग अलग दिनों पे जाके ऐसा किया। आई वेंट देयर एंड आई डिड द सेम प्रोसेस टू लर्न हाउ टू स्विम एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और मुझे वाटर में आनंद आने लगा था। आई वॉज फीलिंग ईजी टू लर्न, और बहुत आसान मुझे महसूस हो रहा था सीखने के लिए। तब तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब तक कि मेरे साथ कोई मिस एडवेंचर दुर्घटना नहीं हो गई। नाउ वन मिस एडवेंचर वाज व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. He went to the California beach with his father at that time. Now he is going to describe about the next misadventure. We have to know the difference between both. The question is asked when he began to fear with the water. Then it was the time of when he was 3 or 4 years old. Not that this time now he is going to mention here. What happened? He went to the YMCA pool and he was copying to other boys. He was feeling easy to learn, but what happened? A misadventure happened there. What happened? I went to the pool when no one else was there. एक दिन वहाँ गया जब कोई नहीं था वहाँ पर। The place was quiet, पूरा शांत था, स्थान खाली था। The water was still, पानी भी शांत था। And the tiled bottom was as white and the clean as the bathtub. और उस स्विमिंग पूल का जो लेवल था, सतह था, वह पूरी तरह से सफ़ेद था, और वह इतना सफ़ेद था, इतना साफ पानी था, दिख रहा था जैसे कि बाथटब हो। I was timid about going in alone. The writer William Douglas is describing here that he went there, everything was there, no one was at that time there, the water was clean and still, but there was timid. Yeah, there was a fear in his mind or heart to go alone to swim. So I sat on the side of the pool to wait for others. इसीलिए वह स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया वहाँ पर छोर पर और वेट करने लगा कि ताकि कोई आए तो उसके साथ क्या करे या उसे देखकर
किसी के रहने पर वहाँ पर राइटर ये जो 10 साल का है, जो YMCA पूल में गया है स्विमिंग करने के लिए, तीसरा चौथा दिन है उसका वहाँ पर, वहाँ आज अकेला गया हुआ, कोई नहीं है, वहाँ जाकर बैठ जाता है इस डर से। अकेले होने पर वह डर महसूस कर रहा है, अगर कोई रहता है आसपास तो वह सिक्योर आदमी महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए अभी वहाँ पर नहीं जा रहा है, अंदर तैरने के लिए नहीं जा रहा और वहाँ पर बैठ गया है। I had not been there long, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, it was not too much time when in came a big brochure of a boy. Big brochure means एक हल्दी हिस्ट पुस्ट एक लड़का आया और probably 18 years old, शायद 18 साल का रहा होगा, और he had thick hair on his chest, और उसके सीने पे घने बाल थे। He was beautiful physical specimen, बहुत ही सुंदर शारीरिक तरीके से एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह से था। With legs and arms, उसके भुजाएं और उसके पैर मोटे थे, हेल्दी थे। एंड शोल्ड रिपलिंग मसल्स, और उसके मसल्स जो आप बाइसेप वगैरह कहते हैं उस तरह से रिपलिंग मसल्स है उसके। ही यर्ड आया और वो मेरे पास आकर क्या चिल्लाया है, इसके नहीं रे दुबले पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे डूबना पसंद करोगे। दिस इज द इंसिडेंट that when he was alone and he was sitting there, he was waiting to someone, he was fearful to swim alone in the pool, so he was waiting there. Then what happened, a boy who was 18 years old, who was big brochure and he was physically specimen, his legs and arms were thick and rippling muscles he had, and he came there and he yelled, आया और चिल्ला कर कहा, हाय स्किनी, अरे दुबले पतले, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, कैसे तुम डूबना पसंद करोगे। देन व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट, विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे छोर की तरह से। वी हैव मेंशन्ड अर्लियर, वी हैव स्टडीड दैट एंड वाज नियरली 9 feet डीप, सो ही टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, उस गहरे भाग की तरफ उसे फेंक दिया उठाकर। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजिशन, और मैं सिटिंग पोजिशन में वहाँ पर गिरा। शैलोड वाटर, पानी पी गया था, निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे कहाँ गया, सतह पर। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि, मेरी चतुराई काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे जा रहा था, जब उसने मुझे फेंका और जब मैं नीचे जा रहा था, मैं डर तो गया था लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी। He was not senseless that time. On the way down I planned when my feet hit the bottom, और रास्ते में जब वह जा रहा था तभी उसने प्लानिंग किया कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, I would make a big jump come to the surface, और मैं जब नीचे की तरफ जाऊंगा और नीचे पहुंचते ही अपने पैर से बॉटम को बहुत तेज़ी से हिट करूंगा, जिससे एक्शन रिएक्शन, द लॉ ऑफ न्यूटन, देयर विल बी एंड ही विल कम आउट ऑफ सरफेस, क्या आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और वह लेट जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पाँव चलाते हुए छोर पर पहुंच जाएगा। In this passage we find out that the boy has tossed him into the deep end water, and what happened, he is going, when inside the water he is very fearful, but he is not totally senseless. He planned that when he will go inside the water, and when he will touch the bottom, he will hit the bottom, and he will come to the surface, and he will lie flat, and by paddling he will come to the out of the pool. Yeah, in the next, it seemed a long way down, but it took too much time to go and touch the bottom. Those 9 feet were more likely 90, और वो 9 फीट की दूरी लग रहा था कि जैसे 90 फीट हो गई हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और इससे पहले कि मैं नीचे जाता और टच करता बॉटम को, ऐसा लग रहा था कि मेरा जो लंग है, जो फेफड़ा है, वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ,
लेकिन जब मेरे पैर ने बॉटम को टच किया तो मैंने अपनी पूरी सामर्थ्य ताकत को इकट्ठा किया एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने सोचा कि मैं एक स्प्रिंग की तरह से ऊपर उछलूंगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कार्क, मैं एक कार्क की तरह से, गेंद की तरह से उछलकर सरफेस पर पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड आई कम अप स्लोली, लेकिन जो सोचा था वह हुआ नहीं। द थिंग बिकम्स अपोजिट, रिवर्स दैट ही डिड नॉट केम फास्टली, ही केम अप स्लोली। आई ओपनड माई आइज एंड सॉ नथिंग, जब मैंने आँख खोला तो मैंने क्या देखा, कुछ नहीं देखा बट वाटर। क्या दिखाई दिया? वाटर दिखाई दिया। एंड वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, और वह वाटर अब कैसा हो गया था? इट बिकेम डिसकलर्ड, इट बिकेम द डर्टी येलो टिंग। आई ग्रू पैनिकी, और मैं पैनिक होने लगा, मुझे अब दर्द सा होने लगा। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, मैं ऊपर आया और मैंने कोशिश किया कि मैं वहाँ की रस्सी पकड़ूं, बट इन माई हैंड देयर वॉज ओनली द वाटर, देयर वॉज नो साइन ऑफ, देयर वॉज नो नेम ऑफ रोप in his hand. In his hand only there was water, water everywhere for him now. I was suffocating. दम घुटने लगा उसका. I tried to yell but no sound came out. मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा था. Then my eyes and nose come out of my water. हाँ, कुछ हद तक मेरी आँख और मेरी नाक पानी के बाहर आए, but not my mouth, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया था इस समय तक. I failed at the surface of the water. I failed at the surface of water, swallowed and choked. मैं सरफेस तक तो पहुंचा, मेरी नाक और मेरी आँख केवल दिख रही थी. मैं फिर से पानी पी लिया और मेरा दम घुटने लगा. I tried to bring my legs up. मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, but they hung as dead weight. ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डेड हो गए हों, इतना अधिक वजन हो गया हो, या पैरालाइज्ड हो गया हो, या पैरालाइज्ड हो गया हो, या रिजिड या कठोर हो गया हो. मेरे पैर ऊपर नहीं आ रहे थे. A great force was pulling me under. और बहुत बड़ी शक्ति जैसे मुझे पानी के नीचे खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी इस आवाज़ को बस केवल पानी ने ही सुना. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से मेरी जर्नी शुरू हो गई. कहाँ? सतह तक जाने के लिए. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और मैं पानी से टकरा रहा था जब मैं नीचे जा रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट मेयर फाइट इन द इरेस्टिबल फोर्स, और मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसी प्रकार से जैसे कोई हम खराब स्वप्न देख रहे हों और खराब स्वप्न में लड़ाई कर रहे हों और किसी बल को, किसी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उस स्वप्न में भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. कुछ ऐसे ही घटित हो रही थी राइटर के साथ. वह पानी के नीचे जा रहा है, टकरा रहा है, वह जो सोच रहा है, अपना बल इकट्ठा कर रहा है, फोर्स स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ अनएबल टू डू दैट. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस पूरी तरह से रुक गई थी. माई लंग्स एक्ट, मेरे सीने में, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा. माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर चकराने लगा. आई वॉज गेटिंग डिजी, चक्कर सा आने लगा मुझे. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे भी अभी रणनीति याद थी, स्ट्रेटजी मुझे याद थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, कि मैं जब जाऊँगा तो पूरी फोर्स से, पूरे सामर्थ्य से क्या करूँगा, बॉटम को टच करूँगा और उसी एक्शन रिएक्शन में मैं पूरी तरह से बाहर आ जाऊँगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी पर फ्लैट लेट जाऊँगा और स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने हाथ चलाऊँगा, एंड थ्रेस विथ माई लेग, और पैर चलाऊँगा. देन आई विल बी आउट ऑफ द स्विमिंग पूल नियर द शोर, तट पर पहुँच जाऊँगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और मैं एज पर, किनारे पर पहुंच जाऊंगा, एंड भी सेफ, और सेफ हो जाऊंगा. इट इज़ सेकेंड टाइम. फर्स्ट टाइम ही वेंट डाउन इनटू द डीप वाटर, बॉटम ऑफ द वाटर, and what was his strategy that was failed, and it is the second time when he is directly going into the water. He is thinking about this strategy, same strategy, but what happened?
आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आइज, और ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे लगातार चला जा रहा हूँ और वो एंड ही नहीं हो रहा है उस गहराई का। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, कुछ नहीं बस केवल येलो ग्लो में, पीले रंग में बस पानी ही दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, अब वह पानी डार्क हो गया था जिससे आर पार अब दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर मेरे अंदर एक भयानक दर्द और एक आतंक छा गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह दर्द, वह आतंक जो कोई समझ नहीं सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक ऐसा आतंक जिसका कोई कंट्रोल नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और उस आतंक को कोई समझ नहीं सकता अगर किसी ने महसूस नहीं किया है, किसी का सामना नहीं हुआ है अगर ऐसे दर्द से, ऐसे आतंक से। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं लगभग पैरालाइज्ड हो गया था पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और पूरी तरह से कठोर और डर से स्टिफ हो गया था पूरी तरह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरी आवाज़ थी वो भी ठंड हो गई थी, फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द, केवल मेरा हृदय चल रहा था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और वह हृदय की धड़कन मेरे सर में बज रही थी, और जो ये बता रहा था सेट दैट आई वाज स्टिल अलाइव, जिससे ये पता चल रहा था कि अभी मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, लेकिन इसी डर के बीच में मुझे एक तर्क सूझी, एक रीज़न आया मेरे अंदर। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, द सेम स्ट्रेटजी इज थिंकिंग दैट आई विल जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर मैंने महसूस किया मेरे नीचे टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे टोज, मेरे पैर के जो अंगूठे होते हैं उस टोज और उंगलियां होती हैं उसने जैसे वहाँ जकड़ गई हूँ। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने, मेरे पास जितनी भी सामर्थ्य थी, जितना भी ताकत था, उसके साथ मैं वहाँ से कूदने का प्रयास किया, जंप करने का प्रयास किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी ढूंढ रहा था, लैडर, सीढ़ी ढूंढ रहा था, वाटर बैंक्स ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं बाहर आ सकूं, जिसकी हेल्प से आई कुड सेव माई सेल्फ, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। नथिंग बट वाटर एवरीवेयर। He was searching ropes, ladder, water banks, but everywhere there was only water. A mass of yellow water held me, और एक पानी, mass of yellow water, किसका झुंड, किसका समूह, येलो वाटर का झुंड जिसने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और मेरे अंदर और भी आतंक और डर बैठता चला जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा झटका लग गया हो किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आई शोक एंड ट्रेम्बल्ड विथ प्राइड, मैं पूरी तरह से हिल रहा था, कांप रहा था डर में। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुला रहा था। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक फिर एक प्रकाश दिखाई दिया। स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अचानक फिर प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द फुल येलो वाटर, उस पानी से। एट लीस्ट माई आइज वेयर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आई, मेरी आंखें बाहर दिखने लगी थी। एट लीस्ट माई आइज वेयर आउट ऑफ देयर, मेरी आंखें कम से कम बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, नाउ इट इज थर्ड टाइम ही इज गोइंग टू inside the under the water. I stuck for air, I sucked for air and got water. मैंने सांस लेने का प्रयास किया लेकिन मेरे अंदर पानी चला गया। The yellowish light was going out, वह जो पीला सा प्रकाश दिखाई दिया था मेरे ऊपर आने पर वह जा रहा था। Then all effort ceased, लेकिन सारे प्रयास फिर क्या हो गए, बंद हो गए। After that what happened? All effort ceased,
सारे प्रयास मेरे बंद हो गए। जो मैं कर रहा था वो मेरे सारे प्रयास बेकार हो गए और मैं लगातार प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, बट दैट all the efforts were going to cease. And what happened? Then all efforts ceased, I relaxed. All efforts ceased, then I relaxed. जब सारे प्रयास मेरे निष्फल हो गए फिर मुझे रिलैक्स महसूस हुआ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर शून्य हो गए हों। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन पर अंधेरा छाने लगा हो, काला अंधकार छाने लगा हो। इट्स वाइप्ड आउट फियर, सारा डर जैसे ख़त्म हो गया हो। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा आतंक ख़त्म हो गया हो। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ऐसा लग रहा था जैसे डरने की अब कोई बात ही ना हो। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, अब मुझे नींद सा फील हो रहा था और अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, जैसे मैं सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, अब थक गया था कि मैं कूद नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब ऐसे धीरे धीरे नीचे जाना अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि मैं तैर रहा हूँ कहाँ, स्पेस में। टेंडर आर्म अराउंड मी, ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, और ऐसा लग रहा था कि किसके हाथ हों, मेरी माँ के हाथ हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मैं सोने जा रहा था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मैं अपने जीवन के उस कर्टन को, उस पर्दे को पार कर चुका था। इट सीम्स दैट ही इज़ गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ द वाटर, ही इज़ गोइंग टू ड्रोन एंड his all the efforts are going to the worthless because he is not going to success, his all the effort is not going to fruitful what he did to save himself. But he says that it seems that he is going to sleep. There is a blackness around him, there is a tender hand, a tender arm like her, like his mother. And the next I remember I was lying on my stomach beside the pool. और फिर जब मुझे याद आया तो मैं पूल के बगल में, पूल के किनारे अपने आप को लेटा पाया पेट के बल, और वोमिटिंग कर रहा था। इट मीन्स someone has saved him and carried him out of the pool and trying to help him. The chap that threw me in was saying, वह लड़का जो मुझे फेंका था वह 18 साल का हिस्ट पुस्ट हेल्दी बिग ब्रोशियर बॉय, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो बस केवल मूर्ख बना रहा था, मुझे क्या मालूम था कि ऐसे डूब जाएगा। समवन सेड द किड नियरली डाइड, तब तक किसी की आवाज़ मैंने सुना कि लड़का तो लगभग मर गया था, मरने के कगार पर पहुंच गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब तो ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम। लॉकर रूम वो स्थान होता है जहाँ पर हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो अपने कपड़े और अपनी सारी सामग्री वहाँ पर सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो डिपॉजिट कर देते हैं, तो वही स्थान लॉकर रूम होता है। फिर कहा जा रहा है कि उसे लेकर कहाँ, लॉकर रूम के पास ले जाया गया। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया था, लड़खड़ा रहा था। आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिल रहा था, चिल्ला रहा था जब मैं बेड पर लेटा शाम को। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, डर से मैं उस रात खा नहीं पाया कुछ। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक मेरे मन में एक डर सा बैठा रहा, मेरे दिल में एक डर सा बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड द सिक टू माई स्टमक, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पेट का मरीज हो जाऊंगा, मेरे घुटने दर्द करने लगे थे। ही वॉज अनेबल टू फील बेटर। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी वापस पूल के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और मैं पानी से डरता रहा। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और जितना भी हुआ मैं अवॉइड करता रहा, किससे, पानी से। मैं नहीं पानी के निकट भी जाने का प्रयास नहीं करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द cascades, I wanted to get into them.
And whenever I did, whether I was wading the Teton and the bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of my completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grip my heart. We have seen two incidents when he was 3 or 4 years old, when he went with his father to the California beach and the wave of the waters swept upon him. That fear, and this fear when he was 10 years old, he decided to go YMCA pool. He decided to learn there. Then what happened? A boy, big brusher boy, who came and he tossed him into the deep water, and he was nearly drowned. He was nearly died, and anyhow he is saved at that time. After that, he is saying now he is saying that it happens whenever he decided to swim, and when he want to get interest to the fishing and everything. Then what happened? A horror, icy horror would grab my heart. He says that कि एक डर उनके अंदर आ जाता है जब वह कभी भी इस तरह का प्रयास करते हैं कि इस तरह का आनंद ले, फिशिंग का ले, कैनोइंग का ले. A few years later when I came to know the water of the cascades, जब उस कैस्केड्स के वाटर के बारे में सुने, वहाँ पर वह जाना चाहते थे, उसमें नहाना चाहते थे, एंड वो स्विमिंग करना चाहते थे. एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी वह करते, वेदर आई वॉज वेडिंग द टियोटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये 2-3 नदियों के और चट्टानों, सॉरी रिवर के और नीम और लेक, वार्म लेक की बात की जा रही है. जब कभी भी यहाँ पर जाना चाहते हैं, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वह डर इनका फिर से क्या हो जाता, वापस आ जाता था. इट वुड टेक पोजिशन ऑफ माई कम्प्लीटली, और पूरी तरह से मुझ पर हावी हो जाता था यही डर. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पाँव काम करना बंद कर देते थे. ऐसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक डर मेरे हृदय में बैठ जाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे जैसे साल बीतते गए मेरे अंदर पानी का यह डर बैठता गया. इन कैनोस ऑन मेन लेक्स, फिशिंग आर landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutchess and Metolius and Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Pumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. He described here many rivers and lakes. He described here about many rivers and lakes. These are mentioned here. These are the rivers and lakes. And about he says that wherever he goes, what happened? Wherever he goes, a fear came into his mind. A fear came in his heart. That terror returned, and because of that he is unable to enjoy the canoeing, watering, fishing or anything. It ruined my fishing trips. He says that he ruined my fishing trips, deprived me the joy of the canoeing. मेरे फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर देता यही मेरा डर. और मैं बोटिंग का, नाव चलाने का, तैरने का, इस सब का, इन सब चीज़ों से मैं वंचित रह जाता था. Now I am going to stop this part here, because in this part we have seen that about the two incident and how he is deprived from the canoeing, boating and everything. And in the next part we will see that how he decided to overcome his fear. कैसे वह निर्णय करता है कि किस प्रकार से वह अपने इस डर पर विजय प्राप्त करेगा. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. और यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, दिस चैप्टर इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. मेनी क्वेश्चन एवरी ईयर आस्क्ड. This year also a question was asked. So we will look further in the next video from here, that how he decide his decision, how he will learn to swim, and what will happen. In the next video we will study about these things. For then, okay, thank you.